भौ निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच खैती सच नानक खुशी सच कामी क्रोधी चातुरी बाजी गर्द काम निंदा करते जन्म सिरानो कबहू ना सिमर्यो राम काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनके आप छुड़ाओ एक भीतर से इनको दारो अपने निकट बुलाओ अपनी विद आप जनावो बिसर नाही कबहू ही ऐसे विद मन में पावो अपनी विद आप जनावो बिसर नाही कबहू ही ऐसे विद मन में पावो सतनाम धन वाके गुरु साहिब जियो आखन जोर चुपै नहीं जोर जोर ना मंगन देर ना जोर आखन जोर चुपै नहीं जोर जोर ना मंगन देर ना जोर जोर ना जीवन मरण न जोर जोर न राज माल मन शोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटा संसार जिस हाथ जोर कर देख सोए नानक उत्तम नीच ना कोय जिस हाथ जोर कर देख सोए नानक उत्तम नीच ना कोय। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग परमेश्वर जी का फिरदा स्वरूप धन धन सतगुरु
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 33ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿੰਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਸਾਲ ਮਿਥ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਲਖ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮਿਥਿਆ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮਿਥੇ, ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਆਏ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਰੁੱਤ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਕਰਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਲਾਹੀ ਪੈਗਾਮ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਤੇ ਆ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਈ, ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 12 ਮਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 12 ਮਾਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਹੁਣੇ ਪਾਠ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੀਤਾ 12 ਮਾਹ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ 12 ਮਾਹ ਦੇ 14 ਅੰਕ ਨੇ। 14 ਅੰਕ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ 14 ਪੌੜੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੰਕ 1 2 3 4, ਇਸ ਦੇ 14 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੇਬਲਤਾ ਸਾਈਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਿਨ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰੁੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਸੰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਲਾਹਿਆ, ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਲੇ ਲਾਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ ਜਿਨ ਘਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ, ਜਿਨ ਕੇ ਕੰਤ ਦਿਸ਼ਾ ਪੁਰੀ ਸੇ ਐਨਸ ਫਿਰੇ। ਜਲੰਤ ਰੁੱਤ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਈਂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾੜੇ ਕਦੀ ਤੱਕੋ ਖਾਂ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਰੰਗ ਪੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਨਵੇਕਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਆਰੇ आज हमारे बने फाग, प्रभ संगी मिल खेलन लाग, होली कीनी संत सेव, रंग लागा अत लाल देव। रब दे प्यारियां दी सेवा कीती, ओ रंग लग गया जेड़ा परत के कदी लहना नहीं।
ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਏ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿ ਫਿਰ ਪਿਚਕਾਰੀਏ ਪੁਰਜ਼ਾਫਰਾਨੀ, ਜ਼ਹਿ ਪਿਚਕਾਰੀਏ ਪੁਰਜ਼ਾਫਰਾਨੀ के हर बेरंग रा खुश रंगो बू करत, गुलाल अफसानिये दस्ते मुबारक जमीनो आसमारा सुरखरू करत। मेरे गुरु गुरु गोबिंद सिंह तेरे हाथ विच ओ नाम दी पिचकारीए कि तू बेरंगिया नू रंग देना ते जिदे उत्ते तू नाम दा रंग चाड़ दिता ओदे विच महक आउण लग पैंदी। तेरे हाथ विच नाम दा गुलाल है ते जदों छिड़के तू कृपा करनी चाहे आसमान ते धरती दोनों तू रंग सकने। मेरे साहब ने ओदे विच भी नाम का उपदेश दिता। अज आ गया सौण का महीना, एक आरंभ विच अर्ज करनी 12वां शुरू हुंदा किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मिलो राम। ते आपां जदों भी कोई काम करने मैं एक खिल सिर्फ थोड़ा जिहा इस महीने संबंधी अर्ज करके पौड़ी ते आउणे। साल बाद हिंदुस्तान विच भी नवीं बहियां लाइया जांदियां ने, नवां साल चढ़दा लेखा जोखा कीता जांदा की कमाया की गवाया किथे घाटा पिया। मेरे साहब ने 12 महीने जदों उच्चारण कीते ते कहन लगे चेते रख तेरी शुरुआत तेरे कीते हुए कर्मां दे पए हुए विछोड़े तोवे ते अरदास करी कि अगला चेत दा महीना आवे ते तेरी तेरे साईं नाल बाणिया। साल बाद लेखा जोखा करी भी मैं कितनी को मंजिल तय की है। साहब ने आरंभ विच क्या किरत कर्म के विचड़े कर कृपा मेलो राम। 4 फुट दह दिश भ्रमे थक आए प्रभ की शान ते हालत इन्नी तरसयोग हो गई है साइया ढेर दुदा ते बारी किता ना आवे काम जल भी साफ कुमलावती उपजै ना इकदाम हर ना न मिलिया साजने कत पाइया विश्राम। तेरे तो बिना अंदर नू टिका नहीं जिवें दुध तो बिना गां नू ठोकराने पानी तो बिना बनस्पति मुरझा जाती है। तेरे प्यार तेरे नाम तो बिना अंदर मुरझा गए। फिर साहब ने कहा चेते रख तू में मुरझाया तेनू चाहिए खेड़ा ते खेड़े नू बाणी विच कहा गया है आनंद। थोड़ी जी तवज्जो दिया जी तू कहना भी जिमें पानी तो बिना बनस्पति कुमला जाती है मेरा अंदर सड़ गया तेनू चाहिए खेड़ा आनंद। आ मैं तेनू पहला सबक सिखा दिया जे आनंद चाहना तो चेत गोविंद आराध्य होवे आनंद कहा तेरे अंदर खेड़ा आशकद है। जे गोविंद नू आराधे ते महाराज किवें आराधा कह लगे संत जना मिल पाई है रसना नाम भना। अगों आ गया वैसाख। देखो एक एक महीने विच गल कीती कह लगे वैसाख दा महीना आए जिमीदार परसाने खेत पक के घर आने शाहूकार परसाने जिमीदार ने मेरा कर्ज लेना ते शायद कहंदे ने वैसाख धीरन क्यों वाधिया जिन्ना प्रेम विछोड़ जिन्हां नूं प्यारे ते प्रेम दा विछोड़ा पै गया उन्हां लई वैसाख दे महीने विच भी धीरज नहीं। अर्ज कर रहे हैं गल कली महीने की पूजा की नहीं गल वाहिगुरू जी के नाम की है। अगा आ गया जेठ सिर्फ ट्यूक मातन कह लगे जेठ के दिन बड़े बड़े होंगे नहीं ते चेते रख जे तू सुख चाहना कि तेनू जमा की फाई तो भी बच सके हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है जिस अगे सब निमन ओदे अगे झुक जाई ओदे नाल जुड़ जाई जिदे अगे सारी दुनिया झुकी है ते दाता ओदे लड़ लग्या कह लगे हर सज्जन दामन लग्या किसा ना देई बन ओदे लड़ लग्या तेनू कोई बन नहीं सकता। आ गया आसान साहब कह लगे हाड़ बड़ा तपदा ही मैं गल कर रहा उतों की रुत दी जिथों आप आए हैं पर कह लगे नहीं जितना मर्जी आसार तपे जे अंदर साईं दा नाम है ना ते हाड़ दा महीना भी चंगा ही तपदा किन्ना लिए आसार तपंदा तिस लगा है हर नहा न जिना पास। हुण हाड़ दी तपस तो बाद आया साउण दा महीना ते जदों चिमचिमी बरसात हुई ते बराग बनस्पति दियां करुंबलां ते हरियावल आई ते मेरे गुरु ग्रंथ साहिब ने क्या कह लगे सावन
सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार, मन तन रता सच रंग, इको नाम आधार, दिख्या रंग कुड़ाविया, दिसन सते सार, हर अमृत बूंद सुहावनी, मिल साधु पीवनहार। साउन दे महीने विच बबिया भी तृप्त हो गई, तुमी हार दे कई जन्मां दे सोके सह के आए, अज कर अरदास दाता, तू साउन दा बदल बन के आ, मेरे अंदर नाम की बूंद पा के मेरे अंदर नू तृप्त कर दे। वैसे साउन दा महीना चारां लई दुखदाई जे ते चारां लई बड़ा सुख वाला है। मेरे साहब ने जदों साउन की गल की, भाई साहब गुणा मंगल च एक बचन पढ़े, सावन आया हे सखी वर्षा ऊनम ऊनम आया, वर्षा नीर नपंग, कह लगे नानक दुख लगा तिन कामनी, जिन कंता सो मन भंग। पर नाल कह लगे जे सौन तू वस जाए, चार बड़े प्रसन्न हुंदे ने, ते जदों तू वसना ते चारां नू इको दम उदासी हो जाती है। कह लगे नानक सावन जे वसै, चौ उमाहा हुए, चार बड़े खुश ने। कौन? नागा, मिर्गा, मछियां, रस्सियां घर तन होए, ये चार बड़े प्रसन्न ने। मीह पैंदा, सप बड़े प्रसन्न सन उस धरती ते। मच्छी जिहड़ी पानी तो तड़पती पई सी, मीह पिया तलाब भरिया गया, वह प्रसन्न है। मिर्ग नूं हरा हरा घाह खाण नूं मिल गया, वह प्रसन्न है। ते जिहदे कर 4 रुपये ने, जिन्ना मर्जी सावन वसी जाए, ओनू किसी की परवाह नहीं, वह भी अकदा प्रसन्न है। नानक सावन जे वसै, चौ उमाहा होए, नागा मिर्गा मच्छियां रस्सियां घर तन होए। नानक सावन जे वसै, चौ विछोड़ा होए, किन्हां नूं? कह लगे गाई पुत्ता निर्दना, पंथी चाकर होए। गाई पुत्तां दा अर्थ जदों मीह पिया है, जिमीदार ने कहा हुण खेत वतर आया, चलो बल्द जोवो आपां खेत नूं वाह के आउणा। विछोड़ा पै गया, काफले तो बल्द बिछड़े। कह लगे निर्दना, जिस गरीब ने दिहाड़ी करके खाना है, जे सारा दिन मीह पैंदा रहा, वो पेट भर के रोटी कितों खाएगा। कह लगे गाई पुत्ता निर्दना, पंथी चाकर होए, जेड़े तुरन वाले लोग सन, मीह पैंदा रस्ते बंद ने, उन्हां विचारियां लई भी सौण दुखदाई है। ते जिन्हें घर विच नौकर रखे, मीह जितना मर्जी पए, नौकर ने जिमीदार दा काम करने करना, भावें उन्होंने वगदे पैंदे कोई मीह विच वगदे कोई पानी भी जाना पे। कह लगे मेरे दाता, इसे तरह ही हकीकत ही जदों गुरु सौण वसदा है, गुरमुख हिरदियां दे अंदर अति प्रसन्नता है, ते जेड़े मनमुख ते सात्विक बिरती वाले ने, उन्हां लई दुखदाई बन जांदा है। साहब कह लगे सौण आया, रस नाल भर लई। मैं अर्ज कीती आनंद मंगदा मनुख। साहब ने कहा हुण भादों जे आउणा, भादवे भरम भुलाणियां, दूजा लगा गेत, लख शिंगार बनाया, कारज नाही केत, असों दी रुत चंगी आई। कह लगे असुन प्रेम उमाड़ा, क्यों मिल गया हर जाए, मन तन प्यास दर्शन घड़ी कोई, आन मिलावे माए। कत्ते आया, कह लगे कत्तक कर्म कमावने, दोष ना काहू जोग, परमेश्वर ते भुलिया, व्यापन सगे रो सबे रोग। मंगर आया, कह लगे मंगर माए सुहंदियां, हर पिरसंग बैठड़ियां, तिनकी शोभा क्या गणी, जे साहिब मेलड़ियां। आ गया पोख, कह लगे पोख तुखार ना व्यापई, कंठ मिलिया हर न, जे सज्जन वैगुरु गले नाले, ते पोह दा कक्कड़ भी कुछ नहीं कहंदा। आ गया माघ, ते साहब कह लगे 11 महीने लंघ चुके ने, आ 11वां आ गई। माघ मजन संग साधुआं, तोड़ी कर इशनान, हर का नाम ध्याए सुन सबना नू कर गान। हुण तकियो मंजिल ते पहुंचने, तरला लिया सी दाता के जल बिन साफ कुमलावती अंदर पहुंच गया है। ते गुरु ने पहले महीने क्या सजना होवे आनंद कणा, पर शर्त है कि जे चेत गोविंद आराधी है। अज आ गया फग्गण का महीना। वाह मेरे गुरु अर्जन साहब, जिस जग्यासू ने तेरे बचन नू एक एक महीने कमांदा रहा, अज फग्गण आ गया,
ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਫਲ ਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰਜਨ ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਆਨੰਦ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਫੱਗਣ ਆਇਆ ਉਹੀ ਜਗਿਆਸੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਫਲਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰਜਨ। ਕਿਹੜਾ ਆਨੰਦ? ਜਿਹੜਾ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਕਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਲਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰਜਨ ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਏ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆ ਮਿਲਾਏ। ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੁਣ ਦੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਇੱਛ ਪੁੰਨੀ ਵਡ ਭਾਗਣੀ ਵਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ। ਕਿਹੜੀ ਇੱਛ ਪੁੰਨੀ? ਕਿ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿੱਦਨ ਫੱਗਣ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਗਿਆਸੂ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ 12ਵਾਂ ਸੁਣੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਸ਼ ਸਰੇ ਹਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ ਦਰਗਹਿ ਸੱਚ ਕਰੇ। 12 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੌੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਾਚਿਆ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਏ। ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਆਕੀਸ਼ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸਾਈਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਸਾਈਂ ਦੀ ਖੇਡ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੂਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਲਵੋ। ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਈ ਸੱਜਣ ਸੰਕਰਾਂਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ का ਸਿੱਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਰੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰਮੁਖੋ फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी ने अज दी जेड़ी ये पौड़ी कृपा करके बख्शिश की, इस पौड़ी का पाठ करियो। ते उधर आपां जपजी साहिब जी की दूजी पौड़ी जिहदी व्याख्या करके आए हैं। दोनों पौड़ियां का सिद्धांत एक ही। उथे हुक्म की गल की, इथे जोर की गल की। साहब ने इथे बचन किया कि मनुख के हाथ विच कुछ भी नहीं। कहने जे तू साईं दे चरनां भी जुड़िया है तां ओदी मेहर है, जे टुटा है तां ओदी रजा इहो जी है। साहब कहने अपनी ताकत नाल कोई बोल नहीं सकता, अपने जोर नाल, अपने बल नाल, अपनी समर्था नाल कोई खामोश नहीं हो सकता। अपनी ताकत दे नाल कोई किसी तो मंग नहीं सकता। तेरी ताकत की कि अपनी ताकत नाल रब कोलों कुछ मंग सके। ताकत नाल तू किसी नूं कुछ दे नहीं सकता। अपने जोर दे नाल जन्म भी नहीं ते अपने जोर दे नाल मौत भी नहीं। ते जिस राज भाग दी फूं फूं करदा शोर वो भी अपनी ताकत अपनी बल नाल नहीं। अपनी ताकत नाल जे तू सोचे मैं ज्ञानवान सुरती बिरती वाला बन जा, बिल्कुल नहीं। ते अपनी ताकत में सोचे जन्म मरण छुट जाए, ये भी नहीं। साहब कहने ये तो मेरे साईं दे हथ विच है। हाँ जो कुछ वो करना चाहे हुंदा वो कुछ ही है। सारी पौड़ी का संखेप भाव के करते पुरख वाहिगुरू दे हथ विच सब कुछ है। ते जदों आपां दूजी पौड़ी पढ़ने हैं ते मेरे साहब ने यही कृपा करके बचन कीते। कहन लगे हुक्मी होवन आकार तेरी मर्जी नाल नहीं, ओदे जोर ओदे हुक्म ओदी समर्था नाल सारे आकार होए ने। शकला तू देखना हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहा जाई हुक्मी होवन जी। ओदे हुक्म में जी पैदा होए, हुक्म मिला वडियाई। अपनी वडियाई जे तू तकने मत सोच ए वडियाई तेरे जोर तेरे बल नाले। जे वडियाई मिली है ते ए भी मालिक दे हुक्म विच।
हुक्मी खोवन जी, हुक्म मिलै वडियाई, हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लेख दुख सुख पाइए। एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा तुहाइए। हुक्म अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई। नानक हुक्म जे बुझै तां हौ मैं कह ना कोई। जदों हुक्म नूं कोई समझ लैंदा है, फिर वो इस पौड़ी ते पहुंचदा है, आखण जोर चुप है मैं जोर। हे मेरे करते पुरख, जीव दे हथ विच कुछ नहीं कि अपनी ताकत का ये प्रगटावा कर सके। शायद तां बाणी विच कितने इसका बल, एदी जिहड़ी ताकत है एदे अपने हाथ विच नहीं। शायद तां बाणी विच कितने जे एदे कोल बल होवे। सतगुरु गुरु अर्जुन दे महाराज जी दे अमृत बचन ने कहन लगे, प्यारे सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गए लेहो ओढ़ निभावे। कां बुझारत बूझै डोरा, निश कहिए तो समझै भोरा। कां विष्ण पद गावे गुंग, जतन करे तो पी सुर भंग। कह पिंगल पर्वत पर पवन, नहीं खोत उहा उस गवन। पर हे मेरे मालक किहो जिहा उपदेश दिता। कह लगे साडे कोल कोई ताकत नहीं, साडी तां ओ हालत है जिवें एक अखां तो किसे नूं दिसे ना। जे तू हथ पड़े तां मंजिल मिल सकदी है, नहीं तां अपनी ताकत नाल तां आपां एक कदम भी नहीं चल सकदे। सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, हे मालक जिवें अखां तो किसे नूं दिसे ना, तो एक कदम नहीं तुर सकदा। तेरे चरनां दी टेक लैके तू हथ फड़े तां ओनू भी मंजिल मिल सकदी है। सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गए लेखो ओढ़ निभावे। कां बुझारत बूझै डोरा। एक बंदा बोला है ते जे ओनू आपां इशारे नाल समझाइए, निश कहिए तो समझै भोरा। इत्थे भोरा दा अर्थ है दिन, कि जे कहिए इशारे नाल समझाइए रात है तो समझी जाएगा दिन है। जिवें एक बोला अपनी समझ नाल कुछ नहीं समझ सकता, इसे तरह साडे कोल कोई ताकत नहीं। हे मेरे करते पुरख वैगुरु, ये सारी ताकत तेरी है। निष्कई है ते ओ भोरा समझदा पिया। कां विष्ण पद गावे गुंग, एक गुंगे बंदे नूं जे कोई कहे तू विष्ण पदा गाउणा, ओदे कोल की ताकत एक गुंगा विष्ण पदा गा सके। जतन करे तो भी सुर भंग। जे गुंगा जतन करेगा गान दे लई, पर उन्हें गा नहीं सकना, क्योंकि गुंगे दे अंदरों सुर ओनू किते ताल ओनू लै दी समझ कोई नहीं। गा तां विष्ण पद गावे गुंग, जतन करे तो भी सुर भंग। कह पिंगल पर्वत पर भवन, जे कोई पिंगले नू कह तू पहाड़ ते चढ़ना, अपनी ताकत नाल ओ पिंगला भी नहीं चढ़ सकदा। नहीं खोत उहा उस गवन, पर मेरे मालक साडे हाथ कुछ नहीं। करतार करना मैं दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा करे। जे तेरी कृपा होवे ते दाता बोला भी समझ सकदा है। जे तेरी मेहर होवे ते गुंगे नूं भी बोलन दी ताकत मिल सकदी है। जे तेरी ताकत तेरी समर्था होवे, एक पिंगला भी मंजिल ते पहुंच सकदा है। मनुख दे हाथ विच कुछ नहीं। सतगुरु दे अमृत बचन आपां पढ़ने आ। कई बारी प्रमाण ओ अर्ज कीता है कि कीता करना सर्ब रजाई, किछ कीचै जे कर सकिए। अपना कीता किचू ना होवे, जो हर भावै त्यों रखिए। मेरे हर जियो सब को तेरे वस, असां जोर नाही। जे किछ कर हम साकै, जो भावै तिवें बख्श। साहब कहंदे बदी सो वजग नानका, सच्चा वेखै सोए। सबनी शाला मारियां करता करे सोए। बदी दा अर्थ है जो मिथ्या गया, वजग दा अर्थ जरूर प्रगट होएगा। जो कुछ मेरे करते पुरख ने लिख दिता है उन्हें प्रगट होना है। जे तू अपनी ताकत नूं छाल मार के टपना चाहना, मैं इस मंजिल नूं तय कर लवां। साहब कहंदे ने यह असंभव है कि वधी सो वजग नानका, सच्चा वेखा सोए। सबनी शाला मारियां, इत्थे शाला दा अर्थ ताकत बल सारियां ने जोर लाया है, पर करता करे सोए। अगे जात ना जोर है, अगे जियो नवें तेरी ताकत
तेरे बल ने उत्थे जाना नहीं। साहब सच्चे पातशाह जी दी अमृत बाणी पढ़ने हैं ना, ज्यों ज्यों कोई साईं दी याद विच सिमरन भी जुड़िया है, त्यों त्यों ओदे हुक्म नूं ओदी रजा नूं समझी गया। आ सतगुरु के अमृत बचना विच 3-4 प्रमाण अर्ज करने ने। उन्हां महापुरुषां रंग रतड़ियां दे जिन्हां ने रमज पा के बचन कीते ते सतगुरु उन्हां दी कुंडी नूं खोल के साडे तक वो अमृत बचन पहुंचा के गए। पहला बचन बाबे नामदेव दा कि भावां वो परमेश्वर दे चरनां भी जुड़े ने। खुद नामदेव कहंदे ने कि नामे नारायण नाही भेद, पर जदों किते जोर दी ताकत दी बल दी गल चली ते इस रंग रतड़े फकीर ने भी कह दिता नहीं साडे कीतियां कुछ नहीं हुंदा मेरे मालका, होना वो कुछ दो तेनू आप पाउंदा होएगा। भैरो राग विच आपां हजूर दा बचन पढ़ने आ, सुल्तान पूछे सुन बे नामा, देखो राम तुम्हारे कामा, नामा सुल्ताने बादला, देखो तेरा हर बीठला, बिस्मल गौ देओ जो आए, नातर गर्दन मारू उठाए, मरी गां जिंदिया कर, नहीं ते नाम दे तेरी गर्दन उतार दियांगा। ते अगो फिर वो कहंदा है, नामदेव कहंदे ने बादशाह ऐसी क्यों होए, बिस्मिल किया ना जीवै कोई, जिहड़ा मर गया उन्हें कभी जी सकना। ते बादशाह कहंदा फिर एवें तारा देना मेरा राम है। अगो वेखो भगत दी निर्माणता ताकत बड़ी है, पर कहंदा नहीं मेरे दाता बादशाह ऐसी क्यों होए, बिस्मिल किया ना जीवै कोए, मेरा किया कछु ना होए, करे राम होया सोए। मेरे रब दे हाथ विच ताकत है, मेरे कीते कुछ नहीं होना, करने वाला केवल करता पुरख आप है, उन्हें करना। साहब कहते ने मनुख दे हाथ विच कोई ताकत नहीं। दूसरा प्रमाण साहब जी दी अमृत बाणी विचों बाबा कबीर साहब दा, जे तू कालना भी कालने कमाई भी करने ते हुक्म नू बुझ नहीं, ए कमाई भी तेरी अपनी ताकत नहीं, ए कमाई ए दात मेरे करते पुरख वाहिगुरू दी है। साहब सच्चे पातशाह दे अमृत बचन ने बाबा कबीर साहब कहते ने कबीर मेहंदी करके घालिया आप पिसाए पिसाए, कहते ने इन्नी घालना कीती, इन्नी मेहनत कीती, इन्नी मुशक्कत कीती, अपने आप नू इंज पी दिता कि जिवें मानो किसी ने मेहंदी पी के बरी कर दी होवे। कहने लगे मेहंदी करके घालिया आप पिसाए पिसाए, पर कहने लगे तय सह बात ना पूछिया कबू ना लाई पाए, इन्नी कमाई कीती पर मेरे मालिक तू साडी बात नहीं पूछी, कदी अपने चरना नाल अपनियां तलियां नाल लाया नहीं। मेरे साहब कहंदे ने अगे महला तीजा, भावें इन्नी घालना किसे ने घाल नहीं होवे, मैदी दी तरह अपनी खौ नू पी दिता होवे, ते जे साईं ने अजे तक चरना नाल नहीं जोड़िया ते मत दावा करके कही भी मैं इन्नी बल इन्नी घालना खाली। कहन लगे अरदास करया कर नानक मेहंदी करके रखिया, 100 नदर करे, आपे पीसै आपे कसै आपे ही लाए लाए, ए पिरम प्याला खसम का जय पावै, तय दे तेरा जोर नहीं, ये तो साईं दी दात है, जिन्हों मर्जी ओ दात बख्श देवे। सतगुरु ने यही कृपा करके दूसरा प्रमाण दिता है। हजूर गुरु अमरदास जी बचन ने बाबा फरीद जी ने जदों क्या कहन लगे प्यारे कि काली जिनी ना रावे धौली रावे कोई, कर साईं सो पिरहड़ी रंग नवेला होए, साईं नू ने कर ओनू प्रीत कर। ते अगे गुरु अमरदास कहन लगे कि हाँ कालना करनी मेहनत करनी जपना अत उत्तम काम है, पर दावा नहीं तू कर सकदा मैं इन्नी कमाई कीती ते ए फल मैनू जरूर मिले। साहब कहन लगे धन गुरु अमरदास जी कहन लगे काली धौली साहिब सदा है, कर चेते रखी जे को चित करे अपना लाया पिरम न लगी, अपने जोर नाल अपने बल नाल अपनी ताकत नाल कदी साईं नाल तू जुड़ नहीं सकेगा, अपना लाया पिरम न लगेगी,
जे लोचा सब कोए पर प्यारे ए पिरम प्याला खसम का जै पावै तै दे। ये तां साईं दी दात है, जिस दी मर्जी झोली विच पा देवे। अज सतगुरु ने एक एक बचन छुए, कहन लगे आखन जोर चुप है मैं जोर। जे तू सोचना मैं बोलना पिया, मत सोची मैं अपनी ताकत नाल बोलना वा। नहीं, जे कोई तेनू बुलांदा पिया तां तू बोलना है, ते जे कोई तेरे अंदरों जोत खिंच लै तू बोल किवें सकेगा। साहिब बाबा कबीर जी ने एक बड़ी सोहनी दृष्टांत उदाहरण दिती। हुण वाजा वजाया जांदा ते उदाहरण दा केवल एक पक्ष लैणे, जां कोई रबाब वजांदा है, कोई सतार वजांदा है। अर्ज कर रहा भावें आपां नाम बारे बोलने आ, भावें उंज बोलने पे आ, ये बोलण दी ताकत तेरी नहीं, ये बोलण दी दात मेरे करते पुरख वाहिगुरू दी है। इत्थे आखण दा अर्थ है बोलना। गुरु ग्रंथ साहिब विच आखण दा अर्थ मुख नाल भी लिया जांदा है। साहिब कहन लगे आखण जोर, अपने जोर अपनी ताकत अपने बल नाल कुछ नहीं तू बोल सकदा। कबीर साहब ने उदाहरण दी, कहंदे वाजा पिया ते वजाण वाला वजंतरी आया, जां रबाब पई है ते वजाण वाला आया ते ओने आके रबाब दी तार छेड़ी ते तार नूं छेड़दियां सार राग पैदा होया, जां पखा वारिया हवा दित्ती वाजे नूं, सुर दबी ते वाजे विचों संगीत राग उत्पन्न होया है। ते बाबा कबीर जी कहंदे ने जोड़ी पई है, जे वजाण वाला आवेगा ते उस जोड़ी विचों दुनिया भर दे ताल पैदा कर सकता है। जे किते कोई वजाण वाला आवे ते वाजे विचों राग पैदा कर सकता है। जे इकल्ला वाजा पिया होवे ते इहदियां सुरां दबण वाला ना होए ते इकल्ले वाजे विचों कदी राग नहीं निकलना, क्योंकि जिन्नी देर तक इहनूं वजाण वाला नहीं आउंदा। साहिब ने प्रमाण दिता, कहन लगे मनुख दा शरीर तां केवल एक वाजे की तरह है। जे तेरे विचों सुर निकलदे ने, आवाज निकलदी है, मत सोच मैं बोल रहा। कहन लगे कबीर जो हम जंत बजावते टूट गई सब तार। ਇਹਦਾ मतलब तार किसी होर दे हथ विच, तेरे हथ नहीं। इत्थे जंत दा अर्थ जीव जंत नहीं, इत्थे जंत दा अर्थ वाजा। कबीर जो हम जंत बजावते टूट गई सब तार। पर कह लगे जंत बिचारा क्या करे, जो चले बजावनहार बजाण वाला कोई हो रहे। अपनी ताकत नाल तू बोल नहीं सकदा। सतगुरु ने अमृत बाणी विच जदों बाणी भी उचारण कीती है, गुरमुखो कदी सतगुरु दे घर दी निर्माणता बाणी पढ़दियां देखियो, किते दावा नहीं कीता कि मैं बोलना पिया हां। जे किते हजूर दे बचन पढ़ने आ, धन गुरु नानक साहब भाई लालो दे घर बहिंदे ने ते सवेरे रबाब बजदी है ते कीर्तन हुंदा है, ते भाई लालो वर्गा गुरमुख पुछदा है कि महाराज ये गीत ये नगमे तेरे ने, ते अगों उत्तर की मिलदा है? आखण जोर वाला गुरु है। कहन लगे नहीं लालो, जैसी मैं आवे खसम की बाणी आप नहीं, जिमें वो बुलाता पे जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान में लालो। आखण जोर शायद कहने बेशुमार अथा अगंत अतोला है, मेरे को ताकत नहीं, जो बुलावो त्यों नानक दास बोला। आखण जोर चुप है न जोर। महाराज बाणी विच कहंदे ने, हे मेरे मालिक जी, मेरे को ताकत नहीं मैं कुछ कह सका। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराहे ते आहो करी विख्यान। आखन जोर चुप है न जोर, मेरे कहण विच कोई ताकत नहीं। सतगुरु ने फिर जदों बाणी उचारण की, आ दशमेश पिता दे बचन पढ़ने हैं, जदों जाप साहिब पढ़िए सवैये पढ़िए ते हजूर दी अमृत बाणी भी जेड़े बचन आउंदे ने, ते भावें गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़ो, जदों आरंभ विच मंगल आपां पढ़ने हैं ना, ते सतगुरु दी निर्माणता तको आम तौर ते आउंदा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। इहदा अर्थ की है? बाणी उचारण लगे ने ते सब तो पहला साईं दी कृपा मंगी, मेरे मालक मैं नहीं बोल रहा,
तू एक है, तेरे वर्गा कोई नहीं। ते जो कुछ कहना है ये सतगुरु प्रसाद तेरी प्राप्ति गुरु की कृपा नाले जेड़ी बाणी उच्चारण कर लगा, ये भी तेरी कृपा दे नाल, अपना ताकत नहीं। हुण साहिब दे अमृत बचना विच पढ़ने हैं, दशमेश जी की बाणी पढ़ने हैं। बाणी अक्सर दसम विच आउंदी है, एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। ते ए नहीं मेरी बाणी, कह लगे तब प्रसाद सवैये पातशाही दसवीं। तब दर थे तेरी, प्रसाद दर थे कृपा। जे मैं सवैये उच्चारण कर लगा मेरे मालिक, तेरी कृपा नाल कर लगा, मेरे कोल कोई ताकत नहीं। तब प्रसाद चौपई, तेरी कृपा दे नाल चौपई उच्चारण कर लगा ते उस दी कृपा मंगी। ते जिदन गुरु अर्जन देव दे बचन पढ़ने आ, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पवित्र स्वरूप दी संपूर्णता होई। अखीर ते दावा नहीं कि मैं कीता। दो तरह के मनुख ने अज की पौड़ी नूं समझिए। एक ओ ने जिन्हां दी जबान विच सारी जिंदगी मैं मरदी हुई नहीं, मैं कीता, मैं करांगा, मैं करन वाला वां। ते साहिब ने उन्होंने बाणी विच पता है की क्या है, हम किया, हम करेंगे, हम मूर्ख गवार, करने वाला विसरिया, दूजा पाए प्यार। जेड़ा कहंदा मैं कीता, मैं करांगा, मैं करने वाला वां, साहब कह लगे जिन्हों करने वाला भुल जाए उदू वड्डा मूर्ख दुनिया से कोई नहीं। हम किया, हम करेंगे, हम मूर्ख गवार, करने वाला विसरिया, दूजा पाए प्यार। ते जदों किते जुड़ी कोई आत्मा, कबीर वर्गे महापुरुष नूं पुछिए भी लोग तेनू कहंदे भी नीवी जात दा ने, तेनू इन्नी विद्या भी नहीं तेरे कोल, पर चार चफेरे तेरी तन तन लोग तेरा नाम लैके जींदे ने। वो बाबा कहंदा कबीर ना हम किया ना करेंगे, मेरे हाथ कुछ नहीं, ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, क्या जानू किछ हर किया भयो। कबीर कबीर मेरे भी जोर नहीं, एक करने वाला मेरा करता पुरख वाहिगुरु है। साहिब साहिब गुरु अर्जुन देव महाराज वो कृपा करते ने, जदों साईं ने संपूर्णता बख्श दी। ये नहीं मैं अपनी ताकत नाल कहा, अपनी ताकत नाल बाणी उचारीए। कह लगे नहीं मेरे मालक, तेरा कीता जातो नहीं, मैनू जोग कीतोई, मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस प्योई। ये तेरी मेहरमत होई, तेरी कृपा नाल सब कुछ बोलिया गया। ते साध संगत जिस दिन बंदा ये दावा करे मैं कहन वाला, मैं करन वाला, गुरमुखो बंदे दे पल्ले रहिंदा कुछ नहीं गए। धर्म की दुनिया विच गुरु कलगी वाले दे जीवन विच एक घटना आउंदी है जिहड़ी विद्वानां दे आम जगियासुआं दे अंदर दे कपाट खोल देंदी है कि सब कुछ करन कराण वाला केवल साईं। हाँ, साहिब ने जिथे नगारे वजाए ने, रंजीत नगारा वजाया, जिथे सतगुरु ने घोड़े रखे ने, शस्त्रबाजी, जिथे गुरुदेव ने जंगा लड़ियां, उथे साईं दे दरबार विच महान कवियां दा इकट्ठ हुंदा सी, जेड़े अपनी अपनी कविता उच्चारण करते सन। अर्ज कर रहा, आखण जोर चुपै ना जोर, सिर्फ अजे आखण जोर, अपनी मर्जी नाल कौन है आखण वाला। साहिब सच्चे पातशाह दा दरबार सजिया ते हजूर ने कहा जेड़ा अख दी सोहनी कविता रचेगा, शब्द रमज भरे रचेगा, ओनू इनाम दे के निवाजिया जाएगा। हर तरह के कवि उथे आए ते चेते रखो भावना वाले कवि वो अपने नाल कदी नहीं सन कहंदे मैं आपां पढ़ने दीवाने गोया भाई नंद लाल जी। हुण जे कोई पुछे भी दीवान तां उन्हां दे बजुर्ग दीवान सन तां ना पै गया, पर गोया दा अर्थ की? दीवाने गोया भाई नंद लाल जी। ते फारसी दे कवि जदों भी कविता रचदे ने वो अपने नाम तो इलावा अपना तुखल्लस वो जरूर विच अंकित करते हैं। भाई साहब ने अपना तुखल्लस जिहड़ा है वो गोया रखे। आम तौर पर साहब जी उन्होंने लाल जी कह के बुलाते होंगे सन। हुण गोया का अर्थ है केवल बोलण वाला। वो कहते ने भाई नंद लाल गोया बुलाण वाला गुरु गोबिंद सिंह है, मैं तो केवल गुरु गोबिंद सिंह के इशारे से बोलना पिया, अपनी ताकत न नहीं। आखण जोर चुपे न जोर, मेरे को ताकत नहीं। दरबार सजिया
ते कहन लगे जिहड़ा सब तो सुंदर कविता रचे ओनू इनाम दिता जाएगा। सब ने कविता सुनाई पर एक मान विच मत्या होया कवि उठिया नहीं। ते कलगी वाले ने इशारा करके पूछा, चंदन जी कि अज तुहानू कविता पूरी नहीं? तवज्जो दिया जे कि मेरे साईं तेरी ताकत तो बिना कुछ नहीं कोई बोल सकता। जे तू चाहे तां मूर्ख भी पंडित बन के वखियान करके लोकां दा जीवन कर सकते ने, पर जे तू ना चाहे ते पंडित भी एक खेल विच मूर्खां दी कतार विच रुड़ जांदे। चंदन जी कविता नहीं पूरी? बोलिया नहीं। साहब ने फिर आवाज दी, कहन लगा महाराज कविता तां पूरी है, पर जेड़ी मेरी कविता है तेरे दरबार विच इस कविता नूं समझण वाला श्रोता कोई नहीं। मेरे ख्याल मेरी कविता मेरी रचना नूं किसी ने समझना नहीं। मेरे साहब ने देखा कि अंदर गरूर है, अंदर हौं बोल बोल बोलदी पई है, ते आवाज दी, चंदन तू कविता सुना तां सही। कवि बैठे सन। अज पहला समा सी कोई कवि कह के तेरे दरबार विच अर्थ कौन करेगा? साहब ने क्या सुना? उन्हें सुनाई। कहन लगा नवसात पिया, नवसात किया, नवसात पिया, नवसात पियाए। उस कविता का एक बंद अर्ज कर देना। नवसात पिया, नवसात किया, नवसात पिया, नवसात पियाए। नवसात रचे, नवसात बदे, नवसात पिया पैदायक पाए। जीत कला नवसातन की, नवसातन के मुख अंचर छाए। मानो मेघ के मंडल में कब चंदन का कले वर्षाए। जदों इन्ने शब्द कह कब चंदन चंद कलेवर के दर ते घोड़ियां नूं घाह पाने वाले ढाई अजे अर्थ कर लगे। इस जैसन के अर्थ उच्चारण उन्हें सोचा मेरी तौहीन हुई। मैं ते अपने आप विच बहुत उच्ची ख्याल पेश किए ने। ते मेरे कलगी वाले ने क्या जाओ भाई साहब भाई धन्ना सिंह नूं बुला के लिया। जदों बुलाण गए ते गुरु गोबिंद सिंह दे घोड़ियां लई एक दातरी एक खुरपा लैके घाह खोतरन जांदा पिया सी। मोढे ते जाली रखी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने आवाज दी, भाई धन्ना सिंह उसे तरह घोड़ियां दे तबेले विच आया, बस्तर मैले, मोढे ते जाली तरा के नमस्कार की गुरु गोबिंद सिंह नूं। ते साहब कहन लगे धन्ना सिंह जी आ चंदन दी कविता दे अर्थ करो। हुण देखो जिदे अंदर ये पौड़ी वसी सी कि अपनी ताकत में मैं की बोल सकना हूं। चरण पकड़ के कहंदा दाता मैं ढाई। साहब ने नजर विच नजर मिला के क्या धन्ना सिंह मैं कह रहा अर्थ करो। चरण पकड़ के कहंदा अर्थ करवाओगे मैं नहीं करने, तुसी करवाने ने। ते जदों इन्ने शब्द कह मत्था टेकिया ते उस वक्त हजूर दे चरनां दा ध्यान टिका के चंदन नूं कहंदा कविता उचारण कर। हुण कदी तकियो खां जेड़ा बंदा सारा दिन घोड़ियां दे तबेले विच रहे, घाह खोतर के लियाए, घोड़ियां नूं खरक ना करे, घोड़ियां दी लिद सटे, ते जिन्हों लोग कहन अनपढ़ है, देखो अज उहदे विच गुरु किवें बोलदा। कहन लगे चंदन जी सुनाओ। उन्हां सुनाई। कहन लगे नवसात पिया, नवसात किया, नवसात पिया, नवसात पियाए। नवसात रचे, नवसात बदे, नवसात पिया पैदायक पाए। जीत कला नवसातन की, नवसातन के मुख अंचर छाए। मानो मेघ के मंडल में कब चंदन चंद कले वर्षाए। हुण भाई धन्ना सिंह कहन लगा बड़ी भैड़ी गल, इहदे ते कोई ख्याल दे अर्थ ही कोई नहीं। ना तां इहदे विचों कोई परमार्थी अर्थ निकले, ना कोई समाजिक अर्थ निकले, ना कोई एदी सेध लैके बंदा कोई व्यापार की तरक्की कर सके। चंदन कहंदा तू दस तां सही अर्थ। वो कहन लगे मैनू अर्थ दस दियां दी नमोशी आउंदी है, बस आ 9 ते 7 पिछे मान करी बैठा। कहन लगा गुरु गोबिंद सिंह जी गिनती पिया करदा जे, नवसात तीया 9 ते 7 16। हुण अगे दी गिनती करी जाना। नवसात तीया, तीया दर ते इस्त्री 16 सालां दी इस्त्री नवसात कीए, उन्हें 16 शिंगार कीते। नवसात पिया 16 सालां दा पति नवसात पिया 16 महीनों बाद घर आया। कह लगे नवसात रचे, नवसात बदे, 16 नरदा वाली एक चौपड़ खेडन लगे ते 16 वारी बाजी खेडन की शर्त लगी। बदेदार की शर्त लगी। नवसात पिया पैदायक पाए। कह लगे
16ਵੀਂ ਵਾਰ पति जित गया ते जितन तो बाद जीत कला नवसातन की, नवसातन के मुख अंचर छाए। उस औरत ने कपड़े नाल दुपट्टे नाल अपने चेहरे नूं ढक लिया, मानो मेघ के मंडल में कब चंद्र चंद कलेवर छाए। ओदा चेहरा अंज लगे जिवें बदलां विच चंद्रमा। आ तेरी कविता दे अर्थ नहीं। हुण भाई धन्ना सिंह जदों अर्थ कीते ते चंदन दा अंदर दहल गया, शायद गुरु गोबिंद सिंह दे चरनां विच डिगण लगा। हजूर कहन लगे तेरी कविता दे अर्थ हो चुके ने, हुण मेरा धन्ना सिंह जो कहेगा ओदे अर्थ तू करने भरी कोई सदा। हुण देखो गोल दा गुरु है भाई वीर सिंह दी मैनू गल एक बड़ी सोहनी लगी। अंदर नूं ने टुंबिया ते खास करके वो साडे स्टेज ते कहण वाले प्रचारकां, क्योंकि जदों असीं कहने एक पासे सुनाई जाने हैं ना, वो कहंदे ने गर्मी दी रुत सी ते सवेरे बगीचे विचों पार्क विचों लंघिया ते धुप दीयां किरणां सूरज दीयां किरणां धरती ते पैण ते छोटा जिहा फुहारा जमीन विच गड्डिया ते उस फुहारे दा मूंह आपां नूं तकै पता कि छोटे छोटे सुराख ने ते कहण लगे मैं देखिया भी इहदा मूंह आसमान वाले मूंह खुलिया, इंज लगदा जिवें विचारा मंगता भिखारी मूंह अड्ड के कुछ मंगदा पिया। भाई वीर सिंह लिखते ने सवेरे जदों निकलिया सां मूंह खाली सी ते फुहारा आसमान वाल तकदा कि कुछ मिलेगा, ते जदों शाम नूं लंघिया वां उसे फुहारे दे विचों पानी फुट के बाहर पिया निकलदा है ते जेड़ा नेड़ों लंघदा ओनूं ठंडिया करके ओदी तपश मिटांदा है, अपने चार चफेरे नूं भी उन्हें ठंडिया कर दिता। भाई साहब कहंदे ने मैं पुछ लिया कि सवेरे लंघिया सां मंगता सैं ते शाम नूं लंघिया तू दाता बन गए। सवेरे तू सुक्का सैं मूंह खाली सी, शाम नूं लंघिया ते लंघण वालियां नूं ठंड देना है। अगों फुहारे ने उत्तर दिता भाई साहब जी जदों मेरे विच पानी ना होवे उदों मुंह खोल के मंगता बन के लंघण वालियां तो मंगना, ते जिदन मेरे अंदर पानी आ जाए उदन लंघण वालियां नूं ठंड दे के मैं दाता बन जाना। कहन लगे बस सिखा इन्नी गल समझ नहीं, तू कहन तुरिया गुरु दी गल, जे अंदर बाणी होवेगी ते बहन वाले तेरे कोलों ठंड लेके जाएंगे, ते जिदन तेरे अंदर बाणी दा सोमा सो गया उदन मुंह अड्ड के लोकां दे दर दा मुथाज हो जाएगा। भाई साहब ने कविता रची, कहन लगे मुंह अड्डी अरशां वल तकिए एक बूंद ना कोई पावे। जदों खालियां एक बूंद नहीं विचों निकलदी पई, मुंह अड्डी अरशां वल तकिए एक बूंद ना कोई पावे। जदों असां विच आ गया कोई आ ओ शहबर लावे, जदों साडे विच साईं तू आ जाए उदों जो कुछ बोलीए उदों शहबर बरसात ला देना। जदों असां विच आ गया कोई आ ओ शहबर लावे, तदों असीं होए दाते वसीए ठंड सुहावा वाले। किधरों कौन कदों दस सखीए कित गुण ओ कोई आवे। हे सखी गुरमत मैनू दस मेरा साईं किवें मेरे अंदर किरपा करे। साहब कहन लगे हुण धन्ना सिंह कविता रचेगा, अर्थ तू करने में ओदा फिर ध्यान गुरु चरना विच गया। कहंदा दाता मैं नहीं रचेगा तू ते सुनेगा चंदन, ते मेरा शरीर केवल एक माध्यम है, बोलना तू है। उते खलोते ने चारक बंद बना दिते। कहन लगे मीन मरै जल के परसै कबहू ना मरै पर पावक पाए, हाथी मरै मद के परसै कबहू ना मरै तन ताप के आए, ती मरै पत के परसे कबहू ना मरै तिर परदेश सधाए, गूढ़ में बात कही दिजराज विचार ना सकै बिना चित लाए। गल मुकाई कहन लगा दिजराज विद्वान पंडित महाराज जो कुछ मैं कह चला शाम तक ये अर्थ मैनू दस दे। कहंदा तैनूं एक दिन का समा दिता, शाम नूं आवांगा। शाम नूं फिर दरबार सजिया, भाई धन्ना सिंह जी गए। हुण गल कोई नहीं सी, पहली पंक्ति सी मीन मरै जल के परसै कब हूं ना मरै पर पावक पाए। ये विचारा विश्राम ही गलत ला जाए करे, पाठ करन दी समझ ना पाए। ये पढ़ जाए करे मीन मरै जल के परसे कबू ना मरै पावक पाए। जिहड़ा कबू शब्द है वो पिछे ला दिया करे ते अर्थ होर हो जाण। जिवें गुरु ग्रंथ साहिब विच भी एक बचन आउंदा है कि गुर अर्जन
घर गुरु रामदास भगत उतर आयो, शायद अर्ज की सी जे दा पाठ करांगे ना कि गुर अर्जन घर, घर शब्द गुरु अर्जन देव ने ला दिता, गुर अर्जन घर गुर रामदास भगत उतर आयो, तो फिर देखियो पिता पुत्र बन जाएगा तो पितर पुत्र जिहड़ा बापू बन जाएगा। एक बचन होर हुंदा शायद दा, पिछत नजीक राख रहमाना भगत कबीर जी का, भविष्यत का अखरी अर्थ स्वर्ग, जे दा पाठ आपां काली नाल इह करांगे भविष्यत नजीक राख रहमाना, ते अर्थ की बन गए कि हे रहमान वैगुरु मैनू स्वर्ग के नेड़े रखी। पर बाबा कबीर तो कहता भी मैनू परवाह नहीं, हम संतन दो राते, वो किवें स्वर्ग मंगवे का पाठ करना पेगा। भविष्यत नजीक राख रहमाना, हे रहमान तू अपने चरणों में रख, तेरे चरणों में रखनी मेरे वास्ते स्वर्ग है। हुण इत्थे शब्द के अर्थ कीते, वो कह लगे मीन मरै जल के परसे कब हूं ना मरै पर पावक पाए, ते भाई जी कह लगे अर्थ करके दस, ते चंदन कहता मच्छी पानी विच सत्या कदी नहीं मरदी, वैगुरु मच्छी पानी विच सत्या मर जाती है, कदी नहीं मरदी जे अग भी सटिए। ते भाई धन्ना सिंह कहने लै मच्छी सतलुज विचों पकड़ के लियाउने आ, अग भी सट के मैनूं जिंदी रख के दिखा, तेरे अर्थ जुगती अनुसार ठीक नहीं। उन्हें दूजी तुक पढ़ी, हाथी मरै मद के परसे कब हूं ना मरै तन ताप के आए, हाथी मर जाता है जे शराब पिया दिता जाए, नशा पियाइए, ते जे ताप चढ़े कदी नहीं मरदा। ते भाई जी कह लगे दस गा हाथी मरदा ही उदन जिदन ताप चढ़दा, तू अर्थ करना पिया कदी नहीं मरदा। उन्हें हाथ जोड़ के कहता नहीं मेरी समझ तो उच्ची गल है। भाई धन्ना सिंह दी अखां भर आईयां, कहता मेरे अगे नहीं, ओदे अगे मत्था जोड़ जेड़ा टेक जेड़ा सर्व कला समराथी। कहता गल सिर्फ इन्नी है कि मीन मरै जल के परसै कब हूं ना, इथे विश्राम ला, फिर देख अर्थ अपने आप हो जाएंगे। मच्छी कदी नहीं मरदी जे पानी विच रहे, पर पावक पाए उदन मरदी है जिदन अग भी सटिए। हाथी मरै मद के परसै कब हूं ना, कभी हाथी नहीं मरदा जे नशा पींदा पिया, ते मरदा किदन तन ताप के आए। कह लगे ती मरै पत के परसे कब हूं ना, पत्नी कदी भी उदास नहीं हुंदी जे पति करे, तिर प्रदेश सदाए जे पति प्रदेश होवे ते उदासी है। गूढ़ में बात कही जिजराज विचार न सके बिना चितलाए। हुण भी दावा करदा मैं बोलना, मेरे साहब कहंदे ने नहीं, सिख नूं समझाई गल ते गुरु ग्रंथ साहिब विच एक शब्द है ओहदे अर्थ जरूरी ने कि सिख की कहंदा, जो कथा भी करदा है कीर्तन भी करदा है, एक भावना बना के बहिंदा दाता मैं नहीं तू बोलना। अज सिख नूं सवाल किया गया कि जो दिशा गुर सिखड़ा, ध्यान दिया जे आखण जोर इस पंक्ति दे, जो दिशा गुर सिखड़ा होवे गुर सिखड़ा तिस निव निव लागू पाए जियो। हुण कई इहदा पाठ करदे ने गुर छे खड़ा नहीं, सिखड़ा बड़ा लादा वाला शब्द ज्ञानी मान सिंह चौर ने इहदे अर्थ कीते ने एक थां ते, मैं उन्हां दे शब्दां अनुसार कह रहा। वो कह लगे राड़ा शब्द बड़ा मिठा जी। वो कहते ने जदों मां पुत्र नूं गुस्से होवे, वो कहती आम तौर पर कहेगी मूंह धो लिया, तेरा मूंह धो दियां। जे चौकी गुस्से च होगी तो शब्द वरतेगी इधर कर बूथा तेरा धोवां, पेंडू शब्द है ना। ते जिदन प्यार विच पुजी होगी कहेगी आ पुत्र तेरा मुखड़ा धोवां। मेरे साहब ने जदों सिखड़ा शब्द वरतिया ना, बड़ा लाड वाला शब्द जे। बाणी विच एक होर भी शब्द हुंदा गुसाई महंडा इठड़ा, अम अब्बे थाओ मिठड़ा, शब्द मिठा है ते शब्द वरते मिठड़ा, बड़ा मिठा शब्द। कह लगे गुसाई महंडा इठड़ा, मेरा साई इन्ना मेरा प्यारा है। अम इत्थे अम दा अर्थ चूपण वाला अंब नहीं, अम दा अर्थ अम्मा, अब्बे अब्बा दा अर्थ बापू। मेरे गुसाई तू इन्ना मिठा है, भावें मां बाप मेरे बहुत चंगे ने, पर जदों तेरा नाम लेना ते मां नालों भी वध ठंड मिलदी तेरे नाम विचों। गुसाई महंडा इठड़ा, अम अब्बे थावो मिठड़ा। इस तरह एक होर भी शब्द वरते ने साहब ने। कह लगे आउणा इस पंक्ति ते आखण जोर, कह लगे जो दिशा गुर सिखड़ा तिस निव निव लागू पाए जियो। ते की कहना
आखा बिरथा जी की गुर सज्जन दियो मिलाए जियो। देखो सिख दे मिलाप विचों केड़ी चीज चेते आवे। अज दाता मेरा मेहर करे, दुखी हिरदे नाल कहना पैंदा है, दो सिख मिलते ने तीजे धड़े की निंदिया होंदी है। कभी पूछे नहीं जाता गुरु के सिखड़िया मैनू दस खां गुरु नानक की कृपा किवें मिलेगी। जो दिसा गुर सिखड़ा तिस निवने लागू पाए जियो। आखा बिरथा जी की गुर सज्जन दियो मिलाए जियो। सोई दस उपदेसड़ा मेरा मन अंत न काहू जाए जियो। ए मन तैकू डेव सा मैं मार्ग दियो बताए जियो। गुरु के सिखड़िया हूं आया दूरों चल के मैं तकी तो शरणाए जियो। मैं आशा रखी चित में मेरा सबो दो गवाए जियो। अगो फिर गुर सिखड़ा बोलिया, कहने लगा वीरा इत मार्ग चले भाईड़े गुर कहे सो कार कमाए जियो। जिस राह पे तुरने वीर जो गुरु कहंदा ओ कार कमाई। इत मार्ग चले भाईड़े गुर कहे सो कार कमाए जियो। त्यागे मन की मतरी वै सारे दूजा भाव जियो। ते गुरु के सिखड़िया मिलेगा की, कह लगी यूं पावे हर दर सावड़ा मैं लगे तत्ती भाव जियो। वो पुछदा है तू एडी सोहनी गल सुनाई तेनू कितों समझ पैगी। हुण देखो आखण जोर, कह लगे हो आपू बोल ना जानदा, मैं नहीं बोलदा पिया। हाँ आपो बोल ना जानदा, मैं कहा सब हुक्माओ जियो। हर भगत खजाना बख्शिया गुरु नानक की आपसाओ जियो। ये बख्शिश मेरे गुरु नानक दी है। साहब कह लगे आखण जोर चुप है मैं जोर, बोलण विच तेरी कोई ताकत नहीं। कई बारी बंदा नहीं चाहता गल करनी, धक्के नाल फिर मुंह विचों निकल जाती है। फिर कहता भी है मैं चाहता भी सा ना बोला। साहब कहने हकीकत वे तेरे वस नहीं सी। आखण जोर चुप है मैं जोर, चुप होने विच भी तेरी ताकत नहीं। जे कोई कहे मैं उंज चुप कर जाना ते चेते रखो अपनी ताकत नाल चुप भी नहीं, मन की चुप भी अपने आप नहीं। सतगुरु ने ते बाणी विच कहा, कहन लगे काया नगर एक बालक बसिया खिन पल फिर ना रहाई। बड़ी कोशिश की मन किते चुप कर जाए। कहन लगे अनक उपाव जतन कर थाके बारंग बाहर परमाई परत के फिर बोल पैंदा। ना जोर चुप विच है ना बोलन विच आखण जोर। चुप है न जोर, जोर ना मंगन दे ना जोर। जे तू कहे मैं जोर दे नाल कुछ मंग लेना ते जोर नाल मंगना होवे ते बंदा सब कुछ अपने घर ना ले आवे। दे ना जोर ते जदों किसी लोड़वंद नूं भी तू कुछ देना है ना ते तेरे देण विच भी कोई जोर नहीं। चेते रख जे तू कुछ देना है ते सच जान कि साईं तेरे ते कृपा करके तेरे विच बैठ के तेरे तो सेवा पै लैंदा। कहन लगे प्यारे जोर ना मंगल दे ना जोर, जोर ना जीवन मर न जोर। जे कोई सोचे मैं अपनी ताकत नाल जीवन अपनी ताकत नाल जींदा रहा, बिल्कुल भुलेखा कर दे। अपनी ताकत नाल कदी नहीं कोई जिया। सतगुरु ने बाणी विच प्रमाण दिते ने। कहन लगे कबीर ए तन जाएगा। देखो प्रमाण दिता जे तेरे कोल बल है ते आ कर लै दो बावां। कबीर ए तन जाएगा सको तन हो बहोर नांगे पावों तेज है जिनके लाख करोड़ ते करोड़ों वाले भी धक्के नाल जमदूत लै गई। जोर नाल किवें जी लैणा। आ सिकंदर वर्गे नूं पुछो खां ताई तां एक अदीब ने कहंदा आखदा जिस वक्त सिकंदर की मौत हुई तरले तां मां ने भी बड़े लए पर की वो अपनी लत्तां पसार के इत्थे जी सकिया। बाबे कबीर ने तां एक होर प्रमाण दिता है। अमृत बाणी विच आपां शब्द पढ़ने अमल सिरानो लेखा देना आए कथन दूत जम लेना। तवज्जो दिया जे भी अपनी ताकत नाल एक श्वास भी नहीं आप लै सकते। अज इनू भाए प्रभावे बिन साफ ते रख तेरे कोल ताकत नहीं। बाबा कबीर जी कहते ने जदों दूत आए मौत का सदा आया। रुपये वाला बंदा सी, हर काम उन्हां रुपये नाल कराया सी। हिंदुस्तान में जिवें हुंदा सच नूं झूठ, झूठ नूं सच। ते जिद्दन कहते ने मौत आई उदन तरला लिया कहंदा जी 2-4 साल रुक जा। उन्हें पूछा क्यों? उते शब्द वरते हैं कहते ने मैं कई पिंडां विचों अपने रुपइयां का हिसाब करना है। मौत कहन लगी क्यों? कहंदा जिन्ने हो जाणगे अध तेरा ते अध मेरा कोई दिन तां रहण दे। बाबा कबीर कहने नहीं
पैसा कदी भी जिंदगी नहीं दे सकता। करूं अरदास गांव किच बाकी, शब्द आरंभ होंदा है अमल सरानो लेखा देना, आए कथन दूत जम लेना, क्या तय कत्या कां गवाया, चलो शताब दीवान बुलाया, चल दरहाल दीवान बुलाया, हर फुरमान दरगाह का आया। कह लगे करूं अरदास मैं बेनती करना गांव किच बाकी। कुछ पिंड रहिंदे ने जिथों इकट्ठा करनी है दौलत, फिर कहंदा महीने ने एक रात ही रहन दे, लियो नबेर आज की राती, अज दी रात दे दे, किच पीस खर्च तुम्हारा सारू, सुबह निवाज सराय गुजारू, स्वक्ते तेरे नाल तुर पांगा। कह लगे सवाल की नहीं पैदा हुंदा, अवर करतूत सगली जम डाने, गोबिंद भजन देने, तेन मन रुपये की गल ही दूर दी। आखन जोर चुपै न जोर, जोर न मंगन दे न जोर, जोर न जीवन, जौन विच कोई जोर नहीं। साहब गुरु अर्जुन देव जी ने एक बचन किया, कहते ने बहुत जतन करता बलवंतकारी, श्लोक संस्कृति। अपनी ताकत में कौन जी सकता है? कहते ने एक बंदा जिन्ने भी जालम जेडे जुल्म करते हैं वो इन्ने को अंदरों डर जाते हैं। कहते ने घर भी बहुत उच्चा पहाड़ के शिखर से बनाया, जिथे तिरंगा भी कभी उड़ के नहीं पहुंच सकता। कहता चार चफेरे इन्ने पहरेदार ने, मैनू कौन जम्मिया मारन वाला? गुरु अर्जन देव कहते ने अपनी ताकत नाल जीवी ना, जिदन समा आ बनया उदन बिस्तरे विचों निकली कोई कीड़ी दे एक डंग नाल तेरी मौत हो सकती है, ताकत नाल नहीं जी सकता। बहुत जतन करता बलवंतकारी, सेवंत सूरा चतुर्दिशय, बिखम थान बसंत ऊंचा, नैन सिमरन मरण कदांच है। कह लगे होवंत आज्ञा भगवान पुरख है, नानक कीती सास इकरकते। साहब ने बाणी विच भी कहा, कह लगे प्यारे चेते रखी कि थे बड़े बड़े आए, हजूर दा बचन पढ़ने है ना कि गहरी करके लीव खुदाई, ऊपर मंडप छाए, मार कंडे ते को अधकाई, जिन त्रेन तार मूड बिलाए, हमरो करता राम स्नेही, काहे रे नर गर्भ करत हो, बिंस जाए झूठी दे, मेरी मेरी कैरो करते दरियोदन से भाई, 12 जोजन छत्र कलैथा देई, गिरजन खाई, सर्ब स्वयं की लंका होती, रावण से अधकाई को बच सके, कहां भयो दर बांधे हाथी खिन में भई पिराई। कह लगे प्यारे जोर ना जीवन, हुण शब्द वरत्या मरण न जोर। जे तू अपनी ताकत नाल चाहे किसी नूं मारना, जे साई रखण वाला तू किसी नूं मार भी नहीं सकता। साहिब कहंदे ने जिस दा साहिब डाडा होए, तिस नूं मार ना सकै कोई। साहिब की सेवक रह शरनाई, आपे बख्शे दे वडियाई, तिस ते ऊपर ना ही कोई, कौन डरे डर किसका होए। साहब कह लगे मिर्गी पे खंत बदक प्रहरेण लख आवद है। श्लोक संस्कृति, मिर्गी हिरनी नूं तकदियां शिकारी ने तीर चलाया है, अहो जस्या रखेण गोपाले, नानक रोम न छेदे ते, जिन्हों तू रखण वाला ओदा वाल भी कोई विंगा नहीं कर सकता। साहब कह लगे प्यारिया जोर न जीवन, मर न जोर, जोर न राज माल मन, शोर शोर दर्थ रौला, फूफा हंकार। जेड़ी तू दौलत इकट्ठी करके बैठा है ना कि मेरे को दौलत इकट्ठी हो जाए तो मान विच मत्या रहे, फू फू करे मेरे तो वध अमीर ही कोई नहीं। साहब कह लगे तेरी ताकत न नहीं, प्यारे आपन लिया जी मिले सबको भागत होए। ये भी मेरे साई ने तेनू वल दे दिते ही, ते जिदन पुठा गेड़ा आया उदन सोने नू हथ पाएगा वो मिट्टी हो जाना ही, ते जिदन साई मेहर करन ते आ गया उदन मिट्टी नू हथ पाएगा सोना हो जाना। ये ओदी मेहर है। साहब ने तां बाणी विच कहा, कबीर कारण बपरा क्या करे, जो राम ना करे सहाय, जय जय डाली पग धरू सोई मुर मुर जाए। जे ताकत दौलत एदा मान है, कह लगे ये भी तेरी बल नाल नहीं। आम तौर पर आप कहने हैं ना मैं बड़ी मेहनत करके रुपया इकट्ठा किया जी, नहीं गुरमुखो जे साई की नजर है तां, जे ओदी ताकत नहीं तां साहब कहंदे ने इत्थे अरबां पति भी गले विच झोलियां पा के भिखारी बनते देखे। यही गल गंगू शाह ने कही सी। एक गंगू वो नहीं जिहड़ा साहब गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्रां नूं पकड़ाउण वाला नहीं, ये गुरु अमरदास दे वेले होए है। सारा दिन भांडे मांजने गोइंदवाल,
ते जदों साहब ने देखा कह लगे तू सारा दिन भांडे मांजने, तेरे केस चिट्टे हुंदे पे ने, मैनूं इंज लगदा तैनूं कोई दर्द कोई पीड़ा कोई वेदना लैके आए। कहंदा दाता गरीब हाँ, रोटी नहीं चलदी, तेरे दर ते कुछ मंगण आया सा, सेवा विच अंदर ते गया मंगण दा की ही नहीं पिया। साहब ने कोलों माया दिती, कह लगे आ लै माया, दिल्ली जाके व्यापार करी, एक काम करी, अपने व्यापार विच गुरु का खाता जरूर रखे। दसवंध जिन्हों आप कहने बहुत विरले होणगे जिहड़े गिण के दसवंध कढने ने, नहीं तो बहुत घट। साहब सच्चे पातशाह कहन लगे गुरु का खाता रखी, जाके जदों व्यापार किया अज होर कल होर परसों होर, दिल्ली शहर विच गंगू शाह गंगा शाह बन गया। अज एक गरीब आया, कहंदा गुरु अमरदास मेरी बच्ची की शादी है, जे किते कृपा करो, गरीबा धी दी डोली अठान जोगे पैसे नहीं, नरम किरदा। कहन लगे दिल्ली चला जा, मेरा सिख रहिंदा गंगा, ओदे कोलों जाके साडे खाते विचों जिन्नी माया तैनूं चाहीदी है तू लै ली, रो ना, तेरी बच्ची दी डोली पत नाल घरों उठेगी। गया, पहला मिलना दिता, जे मिलिया कहन लगा मैनूं गुरु अमरदास ने भेजिया, उन्हां दे खाते विचों पैसे 35 साल। कहंदा कौन अमरदास? कहन लगे गुरु अमरदास। साहब ने बाणी विच कहा है, माटी को पूतरा कैसे नचता है, देखै देखै सुना बोले दौड़ो फिरता है, जब तक पावे तब गर्व करता है। उस दिन गुरु भुल गया, कहन लगा कौन अमरदास, कौन गुरु? कहन लगे जिन्हां दे दर तो तू कृपा ले, कहंदा अपनी ताकत नाल कमाया है, अपनी सियाणप नाल कमाया है। वो सिख उदास हो के कहंदा नहीं, कहंदा साडे घर विच अमरदास जी दा खाता ही नहीं। वो बेचारा वापस आ गया, कहंदा महाराज दिन थोड़े रह गए ने, वो कहंदा तुहाडा खाता ही नहीं। साहब मुस्कुरा के कहंदे ने जे ओने खाता कढिया ते साडे घर भी ओदा खाता नहीं, पर ठीक है पैसे कोलों दिते जा, बच्ची दी शादी कर। अज घाटा पिया 2 दिन 4 दिन, अखीर ते हवेली दी कंध पाड़ के चोरी भजिया, आ फिर गोइंदवाल डिगा। सेवा की कई महीने लंघे, अज दयालु गुरु फिर टुट पिया। असी भुल जाने आ मेरा सतगुरु ते मां है। साहब कहते जे अत क्रोध करे करताया, तांपी चीत न रख समाया। सवेरे भुल करने आ, शाम नूं चरण पकड़ के कहने आ दाता बख्श नहीं, ते सीने न ला के गुरु नानक कहंदा पुत्र चल हुण अज तो बाद ये काम ना करे। इहो जिहा दयालु किते गुरु मिलेगा? यही गल भाई वीर सिंह ने कही सी। 7 साल की उम्र में सिर्फ एक बारी बोले, परत के जिंदगी में स्टेज ते नहीं बोले। शायद उत्ते अर्ज की सी मैं, कहन लगे पादरी कह रहा सी कि ईसा 70 गुना माफ कर दे। फट्टी ते झोला पकड़े भाई साहब पढ़न गए, वापस आए, कहन लगे पादरी लोग इकट्ठे हुए अमृतसर चुरत दे विच, कहन लगे मैं 1 मिनट बोल सकना? कहंदा हां। ते भाई वीर सिंह कहंदे ने 70 गुना माफ ईसा करदे ने, ते जेड़ा इस तो ज्यादा माफ करदा है ते पादरी कहंदा ओ ईसा तो वड्डा। ते जवान तोतली विच बोले, कहन लगे मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराती तरिया रे, गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भास न परिया रे। ओदा तां ना लिया पापी छुट जांदे ने, चेते रखियो गुरु की बिरती की हो जाइए। आया परत के रो पिया, कहंदा दाता तेरा ना अपने खाते विचों मिटा दिता सी। साहब कहन लगे तेरा अपनी सियाणप नाल कमाना सी। कहंदा सियाणप नहीं तेरी दया, मैनू हुण दौलत नहीं चाहिए, अपने को रख। परत के माया दिती लै ना, कहंदा तां माया दई जे अपना शुकराना देने, नहीं तो मैनू इस माया की लोड़ नहीं। साहब ने क्या शुकराना नहीं करेगा? परत के फिर भाग लगे। साहब कहते मत सोच कि जोर ना राज माल मनसोर, मता ए ताकत ए पदार्थ मेरी ताकत है नहीं, ये साईं दी दिती दात है। जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जे सोचे ताकत नाल सुरत ला के मैं ज्ञान हासिल कर लिया, मैं विचार बड़ी चंगी करना। साहब कहते नहीं ये तेरी ताकत नहीं। जोर ना जुगती छुटा संसार,
इत्थे छुट्टे संसार का अर्थ है जन्म मरण छुट जाना। ये अपनी ताकत नाल तू जन्म मरण तो भी नहीं छुट सकता। हुण फिर सतगुरु सिख बन के एक बेनती करते हैं, पुछया दाता जे आखन जोर चुपै न जोर, जोर न मंगन दे न जोर। मेरे दाता जोर न जीवन मरण न जोर, जोर न राज माल मनसोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती। छुट्टा संसार जुगती दा तरीका किसी होर तरीके नाल दुनिया तो छुट नहीं सकता। हुण दस फिर कित्थे जुड़िए? कहन लगे तेरा जोर नहीं, जिस हाथ जोर कर वेखै सोए। ये मेरे मालक दे हाथ ताकत है, जिवें ओनू भाउंदा उवें ओ करदा है। ते देखो कैसा अंदर नू धो दिता। कहन लगे जे कोई नीवें जीवन वाला है ते नफरत ना करी, ते जे कोई उत्ते वाला है ते हीन भावना ना लियाई। ये साईं दे हत्थ विच ताकत ही किसे खिडारी नू उच्चिया बना देंदे, किसे नू नीवा बना देंदी, पर हकीकत नानक उत्तम नीच ना कोई। ये तां ओदी खेड है। ते सतगुरु ने बाणी विच भी कहा, जितने भी आपां बैठे हैं एक गल दृढ़ कर लीए, ये वैसे है ब्रह्म ज्ञान की अवस्था से जाके गल है कि जिदन कोई उच्चा नीवा ना दिसे, सारे अपने दिसन। जिथे जिदन उदन यह भी कहता नमो नित नारायणे करूर कर्मे, करूर कर्म करने वाले तेन नमस्कार। क्यों जी अवस्था होगी? पर यह है बड़ी उच्ची अवस्था। अर्थ आप करी जा रहे हैं। साहब कहते ने मनुख सिर्फ काठ की पुत्री, कहां करे बपरी, खिलावन हारो जाने, जैसा भेद करावे बाजीगर ओ तैसो ही सा जाने। इस पुतली दे हाथ कुछ नहीं। कईयां नू कपड़े पा के धर्म का उपदेश करने लई तोड़ दिंदा है, कईयां नू कपड़े पवा के चुरस्ते विच ठग बना के खड़िया कर दिंदा है। तू पुतलियां नू नाच कराने, तेरी खेड है, मनुख दे हाथ विच नहीं। गुरु बख्शिश करन किते अंदर दी मैं मिट के ये रहमत हो जाए कि साईं दे जोर ते आपां जिंदगी बतीत करिए। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करया जी, होइयां बेअंत भुलां बख्श देणियां जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।